Hi, this is me Soni Yadav, and welcome to my YouTube channel. So, I am preparing for my NET GRF Political Science exam, and finally June 2026 के लिए जो फॉर्म फिलिंग पोर्टल था वो आज बंद हो चुका है. सो फाइनली आई थिंक देयर इज़ नो टाइम लेफ्ट फॉर द एग्ज़ाम प्रिपरेशन नाउ, जस्ट 1 month max. So thought of sharing my PYQ journey for the exam which I am practicing. So मेरे पास कुछ जून नहीं, सॉरी, 2004 से लेके 2023 तक का एग्ज़ाम है. आगे का भी है फॉर द जून 24 का जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, एंड अभी लास्ट जन 26 में जो एग्ज़ाम हुआ वो भी है. लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आई एम थिंकिंग कि जो PYQs मैंने सॉल्व किए हैं उसको यूट्यूब पे शेयर किया जाए, सो दैट पीपल कैन ऑल्सो गेट हेल्प अभी या फिर इन फ्यूचर. सो के पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है उसको सॉल्व करना या शेयर करना स्टार्ट करूँ, सो दैट मेरा खुद का रिवीजन जो है वो थोड़ा और कॉन्क्रीट हो जाए. आई हैव टेकन ये मेरे पास दिसंबर 2004 का एग्ज़ाम है, एंड दिस गोना बी आर फर्स्ट PYQ. ऑलरेडी मैंने सारे के सारे PYQ सॉल्व कर लिए हैं, एंड लेट्स स्टार्ट. So first question says, according to Aristotle, the best constitution should adopt the principle of stability, extreme, mean, perfection. So the answer is mean, because as Aristotle studied 158 constitution, and उनको father of comparative politics भी बोला जाता है इसी की वजह से. एंड उन्होंने अपने जो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बात की मीन की मीन्स गोल्डन मीन की, कि गोल्डन मीन्स बैलेंस करना एंड मॉडरेशन इन ऑल द थिंग्स एंड अवॉइडिंग एक्सट्रीमिटीज या एक्सट्रीम्स. Second question is, according to John Locke, one of the following is not a natural right. So, John Locke is the father of liberalism, and he talked about three natural rights, which are property, liberty, and life. He didn't talk about the work as natural rights. So यहाँ पे जो not natural right पूछा है तो work जो है वो गलत है. Third question is, who wrote that state is perfected rationality? So rationality के बारे में Hegel mainly बात करते हैं. So the answer is Hegel. Gandhian concept of सत्याग्रह is a dash. पॉलिटिकल वेपन है, लीगल वेपन है, सोशल वेपन है और मॉरल वेपन है. द आंसर इज मॉरल वेपन, बिकॉज गांधी जी टॉक्स अबाउट नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, जो उनका एक मोमेंट है. तो ओबियसली ये सब जो है ये मॉरल वेपन है. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंड सॉलेक इन टीचिंग ऑफ. सो बुद्धा को उन्होंने सपोर्ट किया. बाद में उन्होंने अपना जो रिलीजन है वो भी चेंज कर लिया था. ही गेट कन्वर्टेड इनटू बौद्ध रीजन. सो आंसर इज बुद्धा. वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ लिबर्टी इज नॉट एक्सेप्टेबल इन मॉडर्न स्टेट, which natural liberty, political liberty, civil liberty, or economic liberty. So in modern state we talk about the economic liberty, obviously civil liberty, political liberty, but do not talk about natural liberty. So the natural liberty is the answer of the sixth question. Seventh question is, there are four thinkers name, and another side is their books name. So let's match. JS Mill की जो book है, that is JS Mill का जो एक famous concept है, that is of representative government. Then Jeremy Bentham, father of utilitarianism, but here is not his concept, but his book name, The Introduction of Principle of Morals and the Legislation. And John Locke का जो book name है, that is Two Treatises of Civil Government. And J.J. Rousseau की book The Social Contract. Question number 8 is, behaviorism is an attack on. So behaviorism was an attack on normative theory. Ninth question is, post behaviorism, यहाँ पे कुछ concepts है, and another side are there are some thinkers. So post behaviorism is the concept of David Easton का system theory. इस बार का एग्ज़ाम भी था. एग्ज़ाम Jan 2026 का जो एग्ज़ाम था उसमें डेविड ईस्टन के बारे में
दो क्वेश्चन आई थिंक थे. वन इज अबाउट देयर सिस्टम थियोरी एंड अनदर वाज अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वाला क्वेश्चन. सो पोस्ट बिहेवियरिज्म जो है वो डेविड ईस्टन का है. देन यूटिलिटेरियनिज्म अभी पहले वाले पेज पे वी टॉक्ड अबाउट जेरेमी बेंथम हु इज द फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. तो बी का आंसर बी वाला का थर्ड है बेंथम. Then the idea of contradiction was given by Mao Zedong, and the dialectic of idealism, obviously the Hegel is the answer. So जो थर्ड वाला वो 10th क्वेश्चन है again about the Eastons. So the question says which one of the following is not the component of David Easton's definitions of political system. So David Easton का जो political system है उसमें भी मैंने बताया अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं वो अपनी सिस्टम थियोरी में. एंड द आंसर इज डी एलोकेशन ऑफ वैल्यूज टू बी फाउंड इन ऑल इंडिपेंडेंट सोसाइटी. ये गलत है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट. तो एलोकेशन ऑफ वैल्यूज वो स्टेट का काम है. एलोकेशन एज अथॉरिटेटिव ये भी उस पूरी डेफिनेशन में अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं. एलोकेशन ऑफ अथॉरिटेटिव एज अथॉरिटेटिव ऊपर वाला एलोकेशन ऑफ वैल्यूज अथॉरिटेटिव एलोकेशन एज बाइंडिंग ऑन द सोसाइटी सब कुछ है. लेकिन एलोकेशन ऑफ वैल्यूज टू बी फाउंड इन ऑल इंडिपेंडेंट सोसाइटीज ऐसा कुछ नहीं है. Regardless of whether a political system is involved, Easton's definition specifically focuses on how values are authoritatively allocated through a political system. 11th क्वेश्चन कहते हैं अकॉर्डिंग टू एल्मिन एंड पोवेल द कैपेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम आर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सट्रैक्टिव रेगुलेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव. तो इसमें एल्मिन एंड पोवेल की जो कैपेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वाला थ्योरी है उसमें इसमें से क्या क्या है और कौन सा क्या क्या है वो पूछा हुआ है. सो द आंसर इज बी जिसमें आंसर है रेगुलेटिव. पॉलिटिकल सिस्टम कैपेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम शुड आर capabilities of political system are regulative, extractive and distributive but not administrative. उसके अलावा सिम्बॉलिक होता है एंड रिस्पॉन्सिव कैपेबिलिटी होती है. ये 5 जो है कैपेबिलिटीज ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम के पॉइंट्स है एल्मिन एंड पोवेल की. सो अकॉर्डिंग टू लुशियन पाई key element of political development are equality, capacity and differentiation. So लुशियन पाई का ये जो की एलिमेंट है पॉलिटिकल डेवलपमेंट को समझने के लिए ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी के बाद अभी और भी जो हम PYQs करने वाले हैं मैंने देखा कि 2024 से लेके 2008 मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे पेपर में ये एकदम रिपीटेटिव क्वेश्चन है. बट अब ऐसा कुछ सालों से रिपीटेटिव क्वेश्चन ये नहीं है बट स्टिल यू नेवर नो कि एनटीए कब क्या चीज़ रिपीट करे. सो लुशियन पाई का इक्वालिटी कैपेसिटी और डिफरेंशिएशन की एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट के की एलिमेंट्स है. थर्ड क्वेश्चन इज ऑप्शन इज inseparable from modernization, Rostow, Rudolph and Rudolph, Huntington and Apter. So I'm so sorry. Huntington talks about believes in that corruption is inseparable from modernization. जो मॉडर्न जो सोसाइटी है उसमें से जो करप्शन है वो बिल्कुल inseparable है. ऐसा सोचना हंटिंगटन सोचते हैं. सो जो 14th क्वेश्चन है अगेन देयर इज अ मैचिंग. एक तरफ कॉन्सेप्ट के नेम है अनदर साइड में उनके जो प्रोपाउंडर है उनके नेम है. सो ये पावर थ्योरी जो है उसके कुछ थिंकर्स है और उनके कॉन्सेप्ट्स है लाइक थ्योरी ऑफ मासेस. तो थ्योरी ऑफ मासेस जो है क्योंकि मासेस में डबल एस आ रहा है तो मैंने उसको उसी से याद किया हुआ है कि थ्योरी ऑफ मासेस जो है वो ऑर्टेगा गैसेट की है. गैसेट में भी डबल एस आ रहा है. आयरन ऑफ ओलिगार्की ये तो इतनी बार अभी रिसेंट के एग्जाम में भी रिपीट हुआ है ना कि अब तो लर्न हो गया है कि आयरन ऑफ ओलिगार्की जो है वो मिकल्स की है. सर्कुलेशन ऑफ एलिट जो है पैरेटो का है. एंड पावर एलिट के बारे में मिल्स बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ ऑप्शन में मिल्स है. अब ये मिल्स जो है JS मिल नहीं है ये CW मिल्स है. ओके सो
यहाँ पे जो थ्योरी ऑफ मासेस के जो प्रोपाउंडर है ऑर्टेगा गैसेट, उनका जो ऐसे का नेम है ना 1929 में ही रोट एन ऐसे द रिवॉल्ट ऑफ मासेस। सो उनके ऐसे के नेम में भी मासेस आ रहा है, उनके खुद के का नाम जो है सरनेम है गैसेट है उसमें भी डबल एस आ रहा है, और उनकी जो थ्योरी है थ्योरी ऑफ मासेस उसमें भी डबल एस आ रहा है। तो इससे मैंने थ्योरी ऑफ मासेस गिवन बाय ऑर्टेगा गैसेट लर्न कर रखा है। आयरन ऑफ ओलिगार्की मिकल्स की है, सर्कुलेशन ऑफ एलिट पैरेटो का है, एंड पावर एलिट जो है वो CW मिल्स का है। एक बहुत ही ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन है, सो ट्राई टू कीप दिस इन माइंड। ओके, 15th क्वेश्चन कह रहा है अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट स्टैंड फॉर। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो लिमिटेशंस की बात करती है, पावर लिमिटेशंस की बात करती है, गवर्नमेंट को लिमिट करने की बात करती है। सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट स्टैंड फॉर, द बेस्ट ऑप्शन इज डी वाला, अ लिमिटेड गवर्नमेंट। बट बाकी ऑप्शंस भी मैं एक बार बोल देती हूँ। अ गवर्नमेंट विद कॉन्स्टिट्यूशन, अ गवर्नमेंट रन बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, a government run by people's representative with the help of bureaucracy, and D is a limited government. So ऊपर के सारे ऑप्शन जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, गवर्नमेंट होती है, पीपल रिप्रेजेंटेटिव होता है, और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से पीपल का रिप्रेजेंटेशन भी होता है, गवर्नमेंट रन भी होती है। लेकिन द बेस्ट ऑप्शन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट स्टैंड करता है फॉर अ लिमिटेड गवर्नमेंट। 16th क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग मेड अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ प्रेशर ग्रुप इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में सबसे पहले 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में सबसे पहले किसने सिस्टमेटिक स्टडी की प्रेशर ग्रुप्स की? सो इसका आंसर है Arthur Bentley. His book name is The Process of Government 1908. So important question है who among the following, 16th question ही मैं repeat कर रही हूँ, who among the following made a systematic study of pressure group in the first decade of 20th century? So the answer is Arthur Bentley, and his book name is The Process of Government 1908. 17th question, which one of the following is not an essential feature of parliamentary form of government? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कौन सा एसेंशियल फीचर नहीं है? सो इफ़ यू हैव रिमेंबर, तो अभी रिसेंट के कुछ पेपर में कभी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कभी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कभी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कभी डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, कुछ इन तरीके के टॉपिक्स को देखकर फिर उनके फीचर्स पूछता है, उसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो दे देता है। सो कुछ ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन ये 2004 दिसंबर सेशन का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? सो पहले जो है मैं वो बता देती हूँ। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, ओबियसली प्रेसिडेंट, एक फीचर है। फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक फीचर है। बट फिक्स्ड टेन्योर जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का नहीं है। फिक्स्ड टेन्योर जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। सो Again, 18th question says the due process of law is characteristic of the judicial system of USA. So Jan 2026 में USA के 1803 का मलवरी एंड मेडिशन वाला केस के बारे में पूछा, which obviously talks about the judicial review. But यहाँ पे द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात हो रही है, वो कहाँ के जुडिशियल सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक है? सो ये यूएसए का जुडिशियल सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट रिस्पेक्ट ऑल लीगल राइट्स owned to a person and its safeguard from the arbitrary denial of life, liberty or property by the government outside the sanction of law, to require the government to operate within the framework of established legal principle and protect individual rights. तो डेफिनेशन मैंने यहाँ दे दी है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की, आप प्लीज़ देख लेना क्योंकि अभी हमें ज़्यादा सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है एंड उतना मैं बोल नहीं सकती बहुत। 19 क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का है। असर्शन कह रहा है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट इज मोर सुटेबल देन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट फॉर मीटिंग क्राइसिस।
रीज़न दे रहा है, ऑल एक्सक्लूसिव पावर रेस्ट इन प्रेसिडेंट। ओके, सो दोनों को पहले मर्ज करके देख लेते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोर suitable than the parliamentary form of government for meeting crisis because all executive power rest in the president. So मेरे लिए मेरे अकॉर्डिंग, या फिर आंसर भी मैंने टिक कर रखा है ओबियसली, ए है। बोथ ए एंड आर जो है वो ट्रू है, एंड आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बिकॉज इन मॉडर्न डे डेमोक्रेसी और मॉडर्न सोसाइटी आई थिंक इट विल सूट वेल। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टेबल है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर जो है, एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास रेस्ट करती है। सो डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाता है, बहुत कम टाइम वेस्ट होता है, और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन भी आई थिंक और बेटर हो पाता है। सो ए इज़ करेक्ट आंसर। So question number 20 says ki which one of the following amendment had the word secular to the preamble of Indian Constitution? So इसका आंसर है 46th अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जो इंदिरा गांधी ने 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी कुछ चेंजेस किए थे। सो उसमें 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 1976 में जो हुआ था, उनमें कॉन्स्टिट्यूशन में के प्रीएम्बल में 3 न्यू वर्ड ऐड किए गए थे, दैट इज सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी एंड सेक्युलर। तो यहाँ पे वही सेक्युलर वर्ड के बारे में पूछा है कि प्रीएम्बल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में ये वर्ड कौन से अमेंडमेंट के अंडर ऐड किया गया था। सो डेट बहुत इंपॉर्टेंट, डेट किस में ऐड हुआ था, और ये तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। रिवाइज कर लिया है हमने। सो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है द गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन जो है वो जुडिशरी को बनाया गया है। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 124 124, एंड जो सुप्रीम कोर्ट है दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1950 28th January. So the guardian of Indian Constitution is the Supreme Court of India under Article 124, established in 1950 28th January. So question number 22 says in which chapter of Indian Constitution there is a mention of uniform civil code. Okay, uniform civil code जो है वो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, DPSP में है, अंडर आर्टिकल 44 आई थिंक, हाँ 44, अंडर आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ओके, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो आर्टिकल 39 से लेके 51 तक है। Question number 23 says the Lok Sabha was first constituted in. So हमारा कंट्री 50 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ। 29 नवंबर 1949 में हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नॉट इम्प्लीमेंटेड, ओके, अडॉप्ट किया। 25 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ, एंड उस दिन ही हमने हमारा लोकसभा बना नहीं लिया था, बिकॉज उसके बाद पूरा इलेक्शन का प्रोसेस हुआ, एंड 1951-52 में हमारा इलेक्शन कंडक्ट हुआ। अक्टूबर 1951 अक्टूबर से लेके फेब 1952 तक हमारा जनरल इलेक्शन हुआ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड 1952 में हमारी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लोकसभा इस्टेब्लिश या कॉन्स्टिट्यूट हुई। सो 1952 is the answer. Question number 24 कह रहा है under which article of the constitution can parliament legislate on the subject in the state list. जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है पावर सेपरेशन कर रहा है, अब पावर सेपरेशन है अंडर आर्टिकल 249 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। और So 25th question कह रहा है who was the first vice president of India? So obviously the first vice president of India is Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, not Dr. Rajendra Prasad. Dr. Rajendra Prasad was the first president of the India, not vice president. The first vice president of the India is Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. So vice president के बारे में आर्टिकल 63 बात करता है, एंड आर्टिकल 64 में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, इसकी बात करता है। एंड आर्टिकल 65 जो है जो वाइस प्रेसिडेंट है
इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट की बात करता है। आर्टिकल 26 जो है विच अमंग क्वेश्चन 26 जो है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द राइट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो AGI का आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो AGI आर अंडर आर्टिकल 76, इज अंडर आर्टिकल 76 एंड उनके पास राइट टू वोट नहीं है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द राइट, नॉट पूछा है तो उनके पास वो राइट टू स्पीक है, उनके पास लोकसभा राज्यसभा में जाते हैं, वो बैठ सकते हैं, पूरी की पूरी जो भी वो मीटिंग चल रही है वो उसको रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ऑडियंस सारे के सारे कोर्ट्स के ऑडियंस हो सकते हैं वो, लेकिन उनके पास राइट टू वोट नहीं है क्योंकि ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, आर्टिकल 27 कहता है विच वन ऑफ द क्वेश्चन 27 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में अभी आपको ऊपर मैंने आपको बताया कि सेंट्रल के पास अपनी यूनियन लिस्ट है लॉ मेकिंग के लिए, उन पे ही, उन टॉपिक्स पे ही वो लॉ मेकिंग कर सकते हैं। स्टेट के पास स्टेट लिस्ट है, कॉन्क्यूरेंट लिस्ट है जिसपे दोनों कर सकते हैं एंड कुछ रेजिड्यूरी पावर है। तो यहाँ पे यूनियन लिस्ट के कौन कौन से टॉपिक्स है वो पूछा हुआ है। सो डिफेंस, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग यूनियन लिस्ट का टॉपिक है, बट पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है, स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है और वो स्टेट लिस्ट में आता है। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। सो नवंबर 22 1951 में फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी अंडर आर्टिकल 280 and the first chairman of the finance commission is Sri KC Nioji. Okay, so question number 29 is another very repetitive and important question, the anti-defection law. So anti-defection law जो है was enacted in year, ए है ऑप्शन 1985, बी 1983, 1980, 1982। सो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है आया था 1985 में। ये 52nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था और इसमें 10th शेड्यूल में ये अमेंडमेंट किया गया था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 30 टॉक्स अबाउट हु इज रिगार्डेड एज द एक्सपोनेंट ऑफ इकोलॉजिकल अप्रोच इन द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो इकोलॉजिकल अप्रोच Fredericks, given by Fredericks, very important question. The new public administration lays emphasis on NPA, public administration, PABAD Unit 9 का क्वेश्चन है। सो इसका आंसर है डी वाला, एथिकल वैल्यूज एंड रेलेवेंस। सो NPA जो है मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968 के बाद आया था एंड डिवाइड वॉल्डो ने उस मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968 को चेयर किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 है हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट वर कंडक्टेड ड्यूरिंग। तो हॉथरॉन हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट जो है वो 1927 नहीं 1924 से लेके 32 तक हुआ था फॉर 8 years एंड एल्टन मायो इससे रिलेटेड है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 32 एक बार रिपीट करते हैं। हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट वर कंडक्टेड ड्यूरिंग, इट वॉज कंडक्टेड ड्यूरिंग 1924 से लेके 1932 फॉर द 8 years एंड एल्टन मायो led by Alton Mayo. Okay, so question number 33rd पे आते हैं। Informal organization is generally rigid, hierarchical, flexible और written. Obviously flexible. Informal organization जो है वो flexible होता है generally। ये rigid, hierarchical, written ये सब formal organization के properties है। Okay, question number 34 है which school has let down 7 proverbs in the field of public administration. So 7 proverbs in the field of public administration जो है वो क्लासिकल थ्योरी से रिलेटेड है, क्लासिकल स्कूल से रिलेटेड है। वैट के क्लासिकल स्कूल ने 7 proverbs given है। ये 7 proverbs है like division of work, scalar principle which also known as hierarchy, unity of command, span control, grouping of workers means departmentalization and delegation of authority and responsibility, principle of coordination। ये 7 proverbs है जो इस क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा हुआ है। 7 proverbs और इसकी बात जो है ना क्लासिकल स्कूल ऑफ पवेड में हो रही है। ये जो यहाँ पे मैंने H. साइमन लिखा है दिस इज हर्बर्ट साइमन, क्योंकि
हर्बर्ट साइमन ने इसको क्रिटिसाइज किया है. हर्बर्ट साइमन हु critiqued these proverbs in his book The Proverb 1946. So ये 7 प्रोवर्ब्स क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट में गिवन है, ये भी इंपॉर्टेंट है. साथ में इसको क्रिटिसाइज करने वाले हर्बर्ट साइमन भी इंपॉर्टेंट है और उनकी बुक द प्रोवर्ब 1946 भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 35 कहता है द प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल हैज़ बीन एलैबोरेटेड बाय. तो स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है, ये जो ऊपर हमने क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट में 7 प्रोवर्ब्स की बात की ना, तो उस 7 प्रोवर्ब में से एक ये स्पैन ऑफ कंट्रोल भी है. और ये जो कंट्रोल है, ये जो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने 7 प्रोवर्ब्स ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट पढ़ा, उसमें से एक जो प्रिंसिपल है या प्रोवर्ब है वो है स्पैन ऑफ कंट्रोल. और ये जो प्रिंसिपल है ये प्रोपाउंड किया है या इलेबोरेट किया है ग्रानिक्यूनिस ने 1933 में. एंड ये स्पैन ऑफ कंट्रोल है क्या? ये स्पैन ऑफ कंट्रोल है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज, कि एक मैनेजर अपने अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज करने की क्षमता रखता है. दैट इज नोन एज स्पैन ऑफ कंट्रोल. एंड दिस स्पैन ऑफ कंट्रोल का प्रिंसिपल वॉज इलेबोरेटेड बाय ग्रानिक्यूनिस 1933. So another question is 36th question कह रहा है to implement any new program in administration the first essential requirement is. So the first essential requirement is organization. Obviously अगर कोई सा भी न्यू प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होगा तो कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए ना उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए. ऑर्गेनाइजेशन होगी तभी पीपल होंगे, या रिक्रूटमेंट होगी तभी उन लोगों की ट्रेनिंग, उसमें काम करने वाले वर्कर्स की रिक्रूटमेंट के बाद ट्रेनिंग होगी. ठीक है, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है टू इम्प्लीमेंट एनी प्रोग्राम इन द एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, सो 37th क्वेश्चन है द इनिशियल आइडिया ऑफ रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑन मेरिट कैन बी ट्रेस्ड टू द. सो मेरिट के बेस्ड पे जो रिक्रूटमेंट का जो आइडिया है ना, सबसे पहले कहाँ था, कहाँ मतलब किसने दिया. सो इसका आंसर है मैकले कमिटी 1854. वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो यहाँ पे इतना सब कुछ क्या लिखा हुआ है मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ. जब मैंने PYQ सॉल्व किया था तो मुझे ये मैकले कमिटी नहीं पता था कि मेरिट बेस्ड जो रिक्रूटमेंट है ना उसका इनिशियल आइडिया मैकले कमिटी ने दिया था. तो उसको पढ़ने के बाद फिर मुझे पता चला कि भाई फिर ये सब कौन है, मतलब ये सब कौन सी कमिटी है, कब आया, इनका क्या रोल है. जब ऑप्शन में है तो मे बी कभी आ जाए. सो मैकले कमिटी जो है मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट का इनिशियल आइडिया उन्होंने दिया 1854 में. ठीक है, उसके बाद ये जो ली कमीशन है 1923 में आई थी. ली कमीशन जो रिलेटेड है और रॉयल कमीशन था ये इंडिया में. उन्होंने स्टडी किया रेशियल कॉम्पोजिशन ऑफ गवर्नमेंट सुपीरियर सिविल सर्विसेज में. मतलब जो भी सिविल सर्विसेज है ना उसमें रेशियल कॉम्पोजिशन, रंग के आधार पर, काले गोरे के आधार पर जो कॉम्पोजिशन है ना उसके बारे में स्टडी किया. उसके बारे में ये कमीशन थी, ली कमीशन 1923. देन ये जो मैक्सवेल कमेटी है, मैक्सवेल कमेटी जो है एक ब्रिटिश गवर्नमेंट इंक्वायरी सेट है अप टू इन्वेस्टिगेट द बारडोली सत्याग्रह, अ पीजेंट मूवमेंट प्रोटेस्टिंग अ लैंड टैक्स इंक्रीज इन द बारडोली रीजन ऑफ इंडिया. सो बारडोली जो एक रीजन में बारडोली सत्याग्रह में पीजेंट ने मूवमेंट किया, बारडोली सत्याग्रह हुआ था जिसमें पीजेंट ने मूवमेंट किया था. जो बढ़ा हुआ टैक्स था लैंड का उसको रिड्यूस कराने के लिए या उसके अगेंस्ट में, तो उसी की इंक्वायरी के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेट किया था मैक्सवेल कमेटी. सो मैक्सवेल कमेटी बारडोली से कनेक्टेड है. ओके, तो एप्पलबी रिपोर्ट जो डी ऑप्शन है, तो एप्पलबी रिपोर्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन, इस रिपोर्ट का नाम है या बुक जिसमें ये रिपोर्ट छपी हुई है दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. 1953 की ये बुक है एंड इट टॉक्स अबाउट द इंडियन सिविल सर्विसेज नीडेड टू बी मॉडर्नाइज्ड एंड मेड मोर एफिशिएंट. इसमें उन्होंने ये कहा कि इंडिया का जो मॉडर्नाइज्ड सिविल सर्विस है ना, इंडिया का जो सिविल सर्विस है ना उसको थोड़ा और मॉडर्नाइज होने की आवश्यकता है, ज़रूरत है अब उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए या और एफिशिएंट होने के लिए. ओके, सो फाइनली हम 38th क्वेश्चन पे आ चुके हैं. इस 2024 का जो ये सेट है दिसंबर सेट, उस टाइम पे 85 क्वेश्चन होते थे और डेट में अगेन हमारे पास कुछ ऑथर या थिंकर्स के नेम है और साइड में उनकी बुक्स का नेम है. सो ये जो है पबैड
यूनिट 9 से रिलेटेड थिंकर्स है और उनकी बुक्स है। सबसे पहले है लॉर्ड हिवर्ट, लॉर्ड हिवर्ट। सो लॉर्ड हिवर्ट की बुक है द न्यू डिस्पोटिज्म, 1929 में आया था। इसको मैंने लर्न किया था ह्यूआर्ट से, न्यू आर्ट से याद किया था कि द न्यू डिस्पोटिज्म जो है न्यू हार्ट की है, ह्यू हार्ट की है। न्यू डिस्पोटिज्म ह्यू हार्ट की है, न्यू आर्ट से। ऑडवे टेड का जो है द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब आर्ट इससे ज़्यादा मैच करता है बट नहीं, लॉर्ड ह्यूआर्ट की जो बुक है दैट इज़ द न्यू डिस्पोटिज्म न्यू आर्ट, 1929। और ऑडवे टेड का है द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टेड आर्ट। हम इसको टेड आर्ट से याद करेंगे, इसको हम न्यू आर्ट से याद करेंगे। न्यू डिस्पोटिज्म ह्यूआर्ट की है और टेड आर्ट जो है द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑडवे टेड का है। डेविड वॉल्डो की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडियाज़ एंड द इशू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एंड बर्नार्ड की बुक ऑलरेडी अभी कुछ टाइम पहले ऑलरेडी PYQs में आ चुकी है, आई मीन पेपर में कवर हो चुकी है, फिर से आ सकता है कुछ, यू नेवर नो। तो बर्नार्ड का है द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, 1938 में ये बुक आई थी। ओके, सो आगे जो है क्वेश्चन नंबर 39 टॉक्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकसभा वाज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय। The creation of institution of Lokpal was first recommended by. So लोकपाल लोकायुक्त वाला क्वेश्चन इस बार आया था कि सबसे पहले लोकपाल was first recommended by. So फर्स्ट ARC ने लोकपाल को recommend किया था। फर्स्ट ARC की जो डेट है दैट इज़ 5 Jan 1966। ये वाली जो डेट है स्पेसिफिक, ये डेट ARC की इस बार Jan 2026 के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुकी है। सो क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, अगेन एक असर्शन और रीज़न है। तो असर्शन है कलेक्टिव सिक्योरिटी इज़ अ मिराज एंड रीज़न है नेशंस आर गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट। तो दोनों ही जो ये असर्शन और रीज़न है ना, दोनों ही जो फैक्ट है वो बिल्कुल ट्रूथ है, अप टू डेट है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है वो एक मिराज है। रियलिज्म से रिलेटेड ये दोनों ही असर्शन और रीजनिंग जो है रियलिज्म, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो रियलिज्म है उसके बारे में बात करता है। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है एक मिराज है, ये कहा है हंस मोगेंथ्यू ने। एंड नेशन आर गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, ये भी इससे कनेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही है। तो ये जो कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है ना, इसके फादर है कार्डिनल कार्डिनल रिक्ल्यू। और ये जो कलेक्टिव सिक्योरिटी इज अ मिराज, ये स्टेटमेंट का ही है हंस मोगेंथ्यू ने। एंड ही सेड इट अनरियलिस्टिक एंड ऑफन फेल टू प्रिवेंट, कि जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है मतलब कलेक्टिव सिक्योरिटी मतलब आइडियलिज्म, और जो रियलिज्म है वो ओबियसली आइडियलिज्म का तो क्रिटिक है और उसका ऑपोजिट है। तो जो कलेक्टिव सिक्योरिटी जो कि आइडियलिज्म थ्योरी से रिलेटेड है उसको हंस मोगेंथ्यू मिराज बोलते हैं और कहते हैं कि कलेक्टिव सिक्योरिटी से कुछ नहीं होता, अनरियलिस्टिक है वो, और हम ओफन फेल्स टू प्रिवेंट वॉर को रोकने में हमेशा वो असमर्थ होती है, असफल होती है, फेल होती है, जैसे कि लीग ऑफ नेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है अलायंस आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ। अलायंस जो है वो एसेंशियल कंपोनेंट है किसका? तो अलायंस जो है एसेंशियल कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ पावर का, जिस अगेन रियलिज्म से कनेक्टेड है। रियलिज्म में वॉर को प्रिवेंट करने के लिए बैलेंस ऑफ पावर भी एक ऑप्शन, बैलेंस ऑफ पावर एक ऑप्शन है, और बैलेंस ऑफ पावर में ही जो है अलाइंसेस फॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि कोल्ड वॉर के टाइम पे नाटो 1949, वार्सा पैक्ट 1955, और उसके अलावा सेंटो ये सब फॉर्म हुआ था। ये सब अलाइंसेस के एग्जाम्पल है एंड ये सब बैलेंस ऑफ पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। अपनी 2 है वो कह रहा है द ऑथर ऑफ एनार्कियल स्टेट, तो हेडले बुल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एनार्कियल स्टेट आई थिंक स्टेट नहीं है, सोसाइटी है, इसलिए मैंने काट के सर्कल करके उसको सोसाइटी लिख रखा है। ये बुक का नाम है। तो ऑथर ऑफ एनार्कियल सोसाइटी और स्टेट की जो ऑथर है वो हेडले बुल है और उन्होंने 1977 में ये बुक लिखी है। उसके अलावा जोसेफ नाई सॉफ्ट पावर से रिलेटेड है एंड पावर पॉलिटिक्स प्लस
इंटरनेशनल थ्योरी जो है वो मार्टिन वाइट से रिलेटेड है, पावर पॉलिटिक्स 1946, और उनकी एक और बुक है इंटरनेशनल थ्योरी 2007, मार्टिन वाइट। ओके, जोसेफ नाई जो है सॉफ्ट पावर से कनेक्टेड है। और जो यहाँ पे ये डी वाला ऑप्शन है, जेम्स रोजनेव, तो ये जो है ये पॉइनीर ऑफ द स्टडी ऑफ ग्लोबलाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट का के एक इम्पॉर्टेंट थिंकर। ओके, फिर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेक एन अटेम्प्ट टू रेगुलेट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नाम में ही आ रहा है ट्रेड, व्यापार, सो ट्रेड एंड टैरिफ को रेगुलेट करने का काम करती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट वाज फॉर्म्ड इन 1 Jan 1995। GATT को रिप्लेस करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी है 1 Jan 1995 में। ग्रीन पीस मूवमेंट, क्वेश्चन नंबर 44 है, ग्रीन पीस मूवमेंट हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द फील्ड ऑफ। ग्रीन पीस मूवमेंट, नाम से ही समझ आना चाहिए, ग्रीन मतलब इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है ग्रीन पीस मूवमेंट, एंड 1971 में। विच 45 क्वेश्चन कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। इंटरनेशनल लॉ इज बाइंडिंग ऑन ऑल स्टेट, इट इज बाइंडिंग ऑन फ्यू स्टेट, इट इज बाइंडिंग ऑन वेरिंग स्टेट्स, एंड इट इज नॉट बाइंडिंग, सो इंटरनेशनल, सो डी ऑप्शन रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज प्रपोज्ड नो वॉर ट्रीटी ऑफ टू इंडिया। ओके, सबसे पहले जब मैंने ये क्वेश्चन देखा था ना, तो इसमें जो पाकिस्तान वाला ऑप्शन है वो मुझे सबसे ज़्यादा गलत लगा था कि वो तो हो ही नहीं सकता, बट नो वॉर ट्रीटी टू इंडिया जो है ये पाकिस्तान ने ही प्रपोज कर रखा है इंडिया को इन 1981 में। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ प्रपोज्ड नो वॉर ट्रीटी टू इंडिया इज पाकिस्तान इन 1981। सो रियलिस्ट रिगार्ड, 47th क्वेश्चन है, रियलिस्ट रिगार्ड द इंटरनेशनल सिस्टम एज। रियलिस्ट रिगार्ड, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव जो रियलिज्म है ये उससे रिलेटेड है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एनार्की स्टेट इज व्हाट मेक ऑफ इट वाला। तो रियलिस्ट रिगार्ड द इंटरनेशनल सिस्टम एज एनार्किक, की इंटरनेशनल सिस्टम में या इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो बिल्कुल एनार्किक है। एनार्किक मतलब वहाँ पे कोई कोई एक पावर नहीं है जो सब पे इक्वली कंट्रोल करे, या जो सबको इक्वली ट्रीट करे, या जो सब एट कह रहा है। एट सार्क कॉन्फ्रेंस इन इस्लामाबाद 2004 इट वाज अग्रीड अपॉन। सो सार्क का कॉन्फ्रेंस 2004 इस्लामाबाद पाकिस्तान में जो हुआ था, दैट वाज 12th समिट ऑफ सार्क। मुझे इसलिए याद है, या यहाँ पे भी मैंने इसलिए लिखा हुआ है सही से, मुझे इसका आंसर मैंने सही मार्क किया था। साफ्ता इसमें फॉर्म हुआ था, हाँ, और साफ्ता जो है वो इन इफेक्ट 2006 में आया था। एंड जो साफ्ता है वो साउथ एशिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एरिया इन साउथ एशिया से कनेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 48 ये है। ओके, 49 में कह रहा है, फ्रॉम अमंग ऑफ द फॉलोइंग इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ। इंडिया किसका मेंबर नहीं है, तो ऊपर हमने सार्क पढ़ा, सार्क का वो मेंबर है, यूएनओ का मेंबर है, उनका मेंबर इंडिया नहीं है। ओके, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन, अभी पीछे हमने पढ़ा 1 Jan 1995 रिप्लेसिंग GATT, और UNO 1945। ओके, 24 अक्टूबर 1945 डेट भी स्पेसिफिक लर्न करनी पड़ेगी क्योंकि अब स्पेसिफिक डेट्स भी आने लग गया है। सो क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट फाइनली। सो क्वेश्चन नंबर 50 says Plato's Republic demonstrate that democratic form of government is essentially, क्या essentially, तो प्लेटो का जो रिपब्लिक डेमोन्स्ट्रेट करता है। सो रिपब्लिक में आपको बता दूं पॉलिटिक्स की बुक का नाम है, उसको आप RSL से लर्न कर सकते हैं। RSL, R से रिपब्लिक, S से स्टेटमेंट, स्टेटमेंट करके कुछ बुक, L से लॉ। सो जो प्लेटो की जो आर वाली रिपब्लिक वाली बुक है, तो कह रहे हैं कि प्लेटो की ये रिपब्लिक वाली जो बुक है डिमॉन्स्ट्रेट करती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। कैसा, एसेंशियली बैड, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो डेमोक्रेसी है वो बिल्कुल ख़राब है, बैड है बिल्कुल।
ठीक है। क्यों बैड है? क्योंकि प्लेटो बिलीव करते हैं दैट डेमोक्रेसी कैन ईजिली डिवॉल्व इनटू टायरनी। जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ही ईजिली टायरनी में कन्वर्ट हो सकती है, या फिर मॉब रूल में। मॉब रूल यानी कि मॉबोक्रेसी, कुछ मॉब मॉब माने ग्रुप, क्राउड, कुछ लोगों के शासन में वो कन्वर्ट हो सकती है। वो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी ज़्यादा टाइम तक, बिकॉज इट प्लेस टू मच पावर इन द हैंड्स ऑफ पीपल हु मे नॉट ऑलवेज वाइज और वर्च्यूज। क्योंकि डेमोक्रेसी क्या करती है? क्योंकि डेमोक्रेसी में बिल्कुल डायरेक्ट डेमोक्रेसी और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पढ़ा है हमने, आप सबने भी पढ़ा होगा। तो जैसे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिटी ऑफ एथेंस में पहले चलता था। अब सारे कंट्रीज़ में तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं पॉसिबल है। ओबियसली वी फॉलो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हम पावर्स देते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। रिप्रेजेंटेटिव यानी कि कुछ पीपल, मॉब, ठीक है। तो उनको जो हम इतनी सारी पावर एक साथ दे देंगे तो वो हमेशा तो वाइज और वर्चुअस नहीं रहेंगे ना। सो वो कह रहे हैं कि जब वो करप्ट हो जाएंगे तो वो मोबोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाएगा, या वो जो ये जो डेमोक्रेसी है वो टायरनी में कन्वर्ट हो सकती है। तो इसलिए जो प्लेटो है वो अपनी बुक रिपब्लिक में डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो एसेंशियली बैड है, बहुत ज़्यादा बकवास, ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है एडवोकेटेड फॉर एरिस्टोक्रेसी रूल बाय फिलोसोफर किंग। सो तो उनके अकॉर्डिंग जो बेस्ट है ना, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह लो क्या है, तो वो है एरिस्टोक्रेसी रूल बाय फिलोसोफर किंग। वो पीके की बात करते हैं, पीके माने कि फिलोसोफर किंग की बात करते हैं प्लेटो, जो कि एक आइडल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। सो प्लेटो जो है उन्होंने सोसाइटी को 3 पार्ट्स में या 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया, जिसमें फर्स्ट पे वो फिलोसोफर किंग की बात करते हैं। ये वो क्लास या रूलर क्लास की बात करते हैं जो हाईली इंटेलेक्ट पर्सन होंगे, बहुत ही उनके पास जो प्राइमरी वर्च्यू होगा वो विजडम होगा। ओके, उसके बाद सेकेंड उन्होंने बांटा ऑक्सिलरीज या वॉरियर क्लास, जो जिनके पास इमोशन स्पिरिट होंगी, करेज होगा, तो वो जो है वो वॉरियर्स बनेंगे, ठीक है। और थर्ड में उन्होंने कहा प्रोड्यूसर्स या आर्टिशियंस, जिसमें उन्होंने दिया एपेटाइट या फिर टेम्परेंस का वर्च्यू, जिसमें उनके पास जो वो पीपल जिनके अंदर बहुत डिज़ायर है, बहुत हंगर है, लालच है, तो वो प्रोडक्शन करेंगे। तो उनका जो प्राइमरी वर्च्यू है वो टेम्परेंस है। तो उसी के अकॉर्डिंग इन तीनों ही क्लासेस में से सबसे ऊपर उन्होंने रखा फिलोसोफर किंग को, या कहूँ कि रूलर क्लास को, जिनके पास जो बहुत ही ज़्यादा हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन सॉरी बहुत ही ज़्यादा हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन होंगे, और वही जो है वो पूरी सोसाइटी पे रूल करने का काम करेंगे। और उनके अकॉर्डिंग यानी प्लेटो के अकॉर्डिंग वही अरिस्टोक्रेसी बाय द फिलोसोफर किंग जो है आइडल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और उन्होंने डेमोक्रेसी को बहुत ही बैड कहा, ख़राब कहा, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है बाद में, या डेमोक्रेसी जो है वो टाइरनी में या मोबोक्रेसी में कन्वर्ट होने का डर उनको था। सो दीज वॉज ऑल 50 क्वेश्चंस विच आई प्रैक्टिस्ड और आई रिवाइज्ड विद यू गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।